सर स्टार्ट करूयात सर. Good morning, everyone. Those who are online as well as offline. This is the kind of a seminar on history as an optional subject, right? We will be talking about different aspects of this subject. I would also address different myths that we carry as far as the subject is concerned, right? That it is bulky, the syllabus is quite lengthy and whatnot, right? It is not a schooling subject, so we would address all those concerns, right? And at the same time, we would also talk about what is the syllabus of this subject, number one. Number two, what is the expectation of the commission based on PYQs, previous year question papers. Few questions I would take up from 2021 commence examination, right? We would also talk about what sources we are supposed to read for history as an optional. Plus, at the end of it, I will also talk about what we do here as part of the history optional batch, right? So I would just share the presentation for the sake of our reference of the entire discussion. Right. I hope this is visible to all, online as well as offline. Let us look at what all things we are going to discuss today. As I said, we would first talk about different myths which are prevalent about this optional subject, and we would try to understand what is the truth, right? I will try to explain as to why we are calling those impressions as myth, right? And then what is the truth as well. Once we do this, which is a kind of fear factor for many to avoid this subject, but it's not like that. Ye very clear karte hain. Then we will talk about the syllabus that we have for this optional subject, right? And syllabus is one criteria to decide how to study any particular subject for that matter. Another criteria is what you call commonly PYQs, right? Previous year questions. Many a times previous year questions throw a lot of light on what commission expects, right? What kind of answer we are supposed to write. Uska ek understanding aa jata hai. So we will do that as well today. Then sources of study, something that we always look forward to, right? What books we are supposed to study, read, understand. So we baat karunga. At the end of it, how to prepare, including what we do here as part of the batch, right? Let us quickly go through this. So the first myth okay, about this subject is it is very vast. So I'll tell you one thing. Forget about history as an optional or any optional for that matter. By saying that a particular subject has got vast syllabus, we are actually raising doubts over common sense of the commission. Getting this? Okay, let us try to understand this. Commission is conducting an examination to recruit administrators, right? Don't you think commission would give a lot of thought to make it level playing field? Isn't it? I'll explain further. Just understand what I'm saying. Commission is wise enough to make it a level playing field. And if they don't, probably this whole competition is skewed, right? So we need to understand this. So this is a huge myth that syllabus is vast. That is one aspect. Second, अब commission क्या सोच रहे हैं हमको नहीं पता. We don't, right? वो मैं benefit of doubt देता हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं कि syllabus vast है, right? अब उसकी बात करते हैं. Come to the syllabus directly. क्या होता है? Prima facie, the moment you look at something, आपका एक impression बनता है. But that is not always correct impression, right? The moment you look at history syllabus, I'm telling you, it is scary. 7 page तक syllabus खत्म नहीं हो रहा. Everybody is like, oh, seriously? No. But do you know this thing? They have written everything that is there, topic, subtopic, जो कि बाकी ऑप्शन के syllabus में लिखा नहीं जाता. And fortunately, I also teach PSI. So I can at least compare these two subjects authoritatively, right? I cannot talk about other subjects because I don't have authority, right? But since so many years I have been teaching paper 2 of PSI, right?
I have done my post graduation in PSIR, right? And so history I have studied as my optional as well as PSIR. So I can make a comparison in these two subjects at least, right? And based on that, if you understand any other subject, you can do that comparison. My most crude kind of a statement regarding comparison of these two subjects is both are one and the same in terms of the challenge. Optional itself is a challenge because you take any optional, you're supposed to study that subject in an in-depth manner. Okay. GS is general studies, right? यहाँ पे specialization है, ठीक है? So if you ask me the challenge of optional, I would say it is same for both. The difference being history is vast like this, whereas political science is vast like this. और अगर ऊपर से देख रहे तो छोटा लगेगा, अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हुआ। मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ। You pick up the syllabus of history optional, वो 7 पेज का, I'm telling you, running into 7 pages, और hardly 4 pages में political science का syllabus खत्म होता है। On this basis, if you're saying that I would choose this optional without giving a thought to what is your aptitude, what are your strengths, what are your weaknesses, what is your interest for that matter, so you are committing a huge blunder. Reason, आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है? PSI कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ? Because I know both the subjects, right? यही उसका एक उद्देश्य है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं PSI के लोगों को इधर लाना चाहता हूँ या फिर इधर के लोगों को उधर। दोनों में ही पढ़ा था तो उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, right? Just for the sake of your understanding, right? Because I teach PSI paper 2, I will talk about theories of IR. So एक theory of IR देखो कौन से theories है वहाँ पे? Idealism, liberalism, Marxism, realism, ये theories है। ये दिया हुआ है नाम, उसकी फंक्शनलिज्म भी है, न्यू फंक्शनलिज्म भी है, उसको छोड़ो। लेकिन लुक एट दिस 4, अगर इसमें से कोई मैं एक पिक करूं, ये इतने 4 वर्ड्स है, उसमें कितने वर्ड्स है? 4। ये जो है ना रियलिज्म, इसको एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या है। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लासिकल रियलिज्म। क्या है क्लासिकल रियलिज्म? देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यू क्लासिकल रियलिज्म, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यू रियलिज्म। खत्म हुआ क्या? एक सेकंड। क्लासिकल में 3 थिंकर्स हैं, उनकी अपनी थ्योरीज है, ठीक है? Thucydides, Machiavelli and Hobbes, right? Neo classical में you have Hans Morgenthau, the Pope of international relations he is called, Pope of international relations, right? Then neo realism has got 2 broad categories again. One is strategic realism, Thomas Schelling का, right? Then दूसरा जो है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इसमें और 2 और हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, परशिवर, केनेथ वॉल्स। बस हो गया। सो इफ यू लाइक एवरी सब टॉपिक ऑफ PSI तो वो सिलेबस बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत साउंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। देयर इज नीड फॉर sound understanding of theory, ideology, concept. Are you getting this? I would say safely, the kind of depth of understanding and kind of depth of understanding for philosophical, theoretical concepts, which is needed in PSIR, उतना यहाँ पे जरूरत नहीं होगी. I'm not denying that there are no theories, there are no concepts in history. There are, but comparatively those are simpler. इसीलिए उसका कंटेंट बड़ा है लेकिन वो डेप्थ उतना नहीं जितना कि हम PSI में देखते हैं। Are we clear on this? So this is the huge myth that there is vast syllabus. ये हो गया एक पॉइंट। ये जो मैंने अभी बताया आपको PSI का जो ब्रेकअप किया एक टॉपिक का, मैं we can do this as well. इसके लिए are you getting this? मैंने उसमें से एक उठाया बस, that is split into different parts. Now another important point is the syllabus that we're talking about, ठीक है? PSIR में बहुत बड़ा करंट का डायमेंशन, राइट? मैं बस सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, ह्यूज करंट डायमेंशन। पेपर 2 में तो बहुत ह्यूज है, राइट? कुछ भी पूछा जा सकता है जो दुनिया में हो रहा है। GS का फिर भी आसान है बिकॉज GS का एंटायर सिलेबस ऑफ IR इन GS पेपर 2 इज इंडिया सेंट्रिक। हाँ, इसको आयर बोलना भी गलत है, इट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। If you look at PYQs and look at
the syllabus, it is foreign policy of India, right? But वहां पे जो है इंडिया एंड वर्ल्ड क्या लिखा गया है, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये है। दूसरी बात, जो सेक्शन ए है पेपर 2 का PSR के, उधर भी वो करंट आ सकता है। जैसे कि वहां पे एक है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम में जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है वो कैसे चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देयर इज नो रेफरेंस टू इंडिया एज सच, यू आर सपोज स्टडी एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उसके बाद कुछ भी सवाल आ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। When we devise the test series here for any subject for that matter, right? What we do generally is we look at the previous year question papers, recent particularly, right? किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस नेचर के आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, उसका एक फाइन कॉम्बिनेशन बना करके हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। आई विल टेल एन एग्जांपल लास्ट few years का। We know there were at least 2 to 3 years into COVID pandemic का जो impact था, right? What was the impact of COVID pandemic on the world order? ये अपने आप में एक ह्यूज टॉपिक है, पता है क्या आपको? ये सिलेबस में कहीं दिखेगा नहीं आपको PSR के, हेलो, वो कहीं दिखेगा नहीं, इट इज देयर। तो इस तरह के सवाल आते हैं। What do you think would be the contours of post-COVID world order critically examined? ये कहीं सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हिस्ट्री का कोई भी सवाल सिलेबस के बाहर, वो भी सिलेबस के बाहर नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल सिलेबस है। There is some invisible syllabus in some of the subjects. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, right? Is it that I'm trying to convince you to come here and join for history optional? No. What I'm trying to do here is, if you happen to have some kind of interest in the subject which has brought you here, right? There's nothing to worry about. समझ में आ रहा है क्या आपको? आप में से कोई आप सेमिनार की बाद में आकर के मुझे बोल दे कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं लेना है, सेमिनार के बाद मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दूसरे लेवल में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में, प्रोग्राम में, आपको मैं बोलूंगा कि यस प्लीज गो अहेड, राइट? This is not an advertisement of this optional, but those who are genuinely interested in this subject have nothing to worry about. So आप वो सब भूल जाओ, मार्केट में चीजें लोग बनाते हैं, but I'll tell you one thing, टॉपर्स पैटर्न बनाते हैं, बाकी लोग पैटर्न को फॉलो करते रह जाते हैं। Getting this? And every time the pattern is different, सक्सेस का, right? और इसीलिए मैंने लिखा, श्रुति शर्मा is not our student. Let me tell you very openly and candidly. She has no relation whatsoever with our academy. But the point is, with her self-study, whatever guidance she got, history is an optional which is not scoring, right? उससे आपका prospects कम हो जाता है सिलेक्शन का, ये लोग बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा तमाचा है। Nowhere history optional prevented her from securing all India rank 1. उससे बस हमने ये इंस्पिरेशन लेना है जो हिस्ट्री अपने बारे में सोच रहे हैं। If we do our best, right? We always have a chance. If you take the popular subject so far, या फिर the subject which is recently, considered as unpopular recently, वो पहले बहुत popular था, that is because people create some kind of an impression based on their failures. Getting this? And they start finding excuses. तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पॉपुलर अनपॉपुलर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर आपका स्कोर डिसाइड होता है। ऑप्शनल पैसा है, इसके ऊपर स्कोर डिसाइड नहीं होता। 300+ score is really good score for any optional. Are you getting this? In social sciences इतने मार्क्स मिलते नहीं, really good score, right? है ना? She has scored 306 out of 500. But I can tell you, we can do more as well. Safely. Because पढ़ना कैसे है, क्या कर सकते हैं? श्रुति शर्मा उसने स्टैंडर्ड सेट किया, कैन वी गो बियॉन्ड इट? हाँ, और ये सोचना कुछ गलत नहीं, आप जानते हो। विराट कोहली ये सोच रहा है क्या कि सचिन के 100 सेंचुरीज के आगे नहीं जा रहा है? नहीं, he is trying his best, right? You have to do it because your objective should be, I should be topper of history optional and thereby whatever rank you get, right? उसमें टॉप करना चाहिए। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आप चलो, एंड डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट नीचे ही है, स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है का, इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड श्रुति शर्मा का रैंक 1 आ गया, इसलिए आपको पता है ना, बट देयर आर मेनी रैंक होल्डर्स जिनका रैंक शायद नीचे है, पर उनका हिस्ट्री का स्कोर काफी अच्छा है, जीएस में कम हो गया। देयर इज समथिंग, राइट? सो दीज आर मिथ्स, दिस इज मिथ,
दिस इज myth. मैं भी कह रहा था कि PSI and different other subjects have got a concrete current dimension. So this subject is mostly static. And this very marginal current component. हिस्ट्री में करंट होता है क्या? अलग तरीके से. I'll tell you how. Something happens today which is connected to the past. जैसे कि बिरसा मुंडा का एक प्रोग्राम हुआ उसको सेलिब्रेट करते हुए एज अ फ्रीडम फाइटर, राइट? तो उसके बेस पे बिरसा मुंडा की रिबेलियन पे सवाल आए ना आए, आपको 19th सेंचुरी में जो पीजेंट रिबेलियन हुए थे, ट्राइबल रिबेलियन हुए थे, उसके ऊपर सवाल आ सकता है. So that is the only connect we have with current dimension, right? So the moment you see Birsa Munda ka program, you have to just go for what? 19th century revolts and rebellions. Uska analysis hai kya aapke paas? So your content is still static. It's the marginal component of current that you have. But मैंने आपको example दिया कि PSI में एक whole new dimension opens up, right? COVID का impact on international relations. इसका कोई मेंशन नहीं, अपने आप में बड़ा कंटेंट है, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा. इमीडिएटली जो है वो बुक में नहीं मिलता, आपको आर्टिकल्स ढूंढने पड़ते हैं, थिंक टैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, IR के उधर से वो आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, नोट्स निकालने पड़ते हैं. बट आपका ऐसा है, एक बार आपका सोल डिसाइड हुआ ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड आई एम टेलिंग यू विद सर्टेन कॉन्फिडेंस इन माय माइंड, राइट, दैट द क्लास स्टडी मटेरियल वुड बी मोर देन इनफ for this subject. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Because I take that advantage, right? क्योंकि current dimension है नहीं. दूसरी बात, when you read at least 5 to 6 books for each section, ancient, medieval, modern, और क्या आने वाला modern world history, that is what I'm doing up. 5 to 6 books along with IGNO books, उनका content एक जगह पे एक flow में मैंने बनाया. Getting this? और उसमें lot of historians के नाम, उनके एनालिसिस, जो कि हिस्ट्री के ऑप्शन में दिखना चाहिए आंसर में. That we have done. Right? Now, what is your task? You just read those notes. और नोट्स मतलब माइक्रो नोट्स नहीं है, मैंने वो पैराग्राफ लिए, मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ, उसको ऑर्गेनाइज मैं नहीं किया, मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बस अलग अलग बुक्स से जो रिलेवेंट कंटेंट है वो लेके आ रहा हूँ. हिस्ट्री के बुक्स जो लिखते हैं वो प्रोफेसर से पढ़े, दैट हिस्टोरियंस, वो यूपीएससी के लिए नहीं लिखते, वो उनका अपना रिसर्च होता है, उससे हमको क्या लगता है वो लेना पड़ता है. Getting this? Many people are talking about Upinder Singh these days very easily, but that is one of the tough books to read. That is because the treatment of the subject is from the perspective of historian, a scholar. And what I have done, the content of that book, along with R.S. Sharma's book, along with Rabindranath Thakur's book, right? And along with IGNO books. So what we have done, along with D.N. Jha's book for that matter, right? What we have done here is वो सारा कंटेंट यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक के अनुसार लिखा हुआ है. तो आपका सिलेबस का टॉपिक उसका सीधा हेडिंग मिलेगा नोट्स में. नहीं मिला तो मुझे बताओ. Getting this? So you don't need to worry about that. You just focus on it. अब जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, आई नो यूपीएससी, नोबडी कैन डू दैट, राइट? मैं बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको 8 सवाल आते हैं, राइट? यूपीएससी के पेपर में, एक पेपर में, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 and 5 कंपल्सरी होते हैं, राइट? देन रिमेनिंग जो सवाल है, बचे सवाल जो 6 है, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं, एम आई राइट? तो हो सकता है कि एक आध सवाल हमारे नोट्स के बाहर जाए, बट यू कैन सेफली पुट इट इनटू ऑप्शंस. ये तो होने नहीं वाला, बट फिर भी बिकॉज आई डोंट कैरी ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आपको जो कंपल्सरी सॉल्व करना है वो इजीली आप डील कर सकते हैं. Getting this? So don't worry at all about vastness of syllabus. And रही बात हार्डवर्क की, वो हर सब्जेक्ट के लिए करना पड़ता है. Doesn't matter which subject you choose. ये हो गया पहला myth. दूसरी बात, there is one more myth about history. Very common myth that we are supposed to by heart facts, dates and information. You please mind it. We are discussing about UPSC examination, right? यहाँ पे इन सब चीजों को उतना महत्व नहीं है, बट वो आपके आंसर में आना चाहिए जितना हो सकता है. ऐसा नहीं किया ये पता है क्या, बताओ, नहीं पता तो निकलो यहाँ से. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? शो मी वन क्वेश्चन दैट आस्क्स यू फैक्ट या फिर डेट इन द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री एंड ऑप्शनल, राइट?
There is not a single question which would ask you date. Yes, they may expect some information and facts. Expect. Ask, expect, right? In your answer, that you can do. आपको अगर 20 पॉइंट पता है तो उसमें से आप 6 तो लिख सकते हो. 20 पॉइंट देने का काम मेरा है. इंसान इतना पढ़ता है तो इतना तो याद रखता है. दैट आई विल डू. आपने 2 पेज का कंटेंट दिया, आप उसके ऊपर 150 शब्दों का आंसर लिख सकते हो ना, उसके बेसिस पे 250 शब्दों का आंसर. So I'm telling you, you are not supposed to by heart facts and information. History is quite logical because history is human account, and human life cannot be logical. First वो logic समझना चाहिए. What you should understand is flow of history. जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंसान ने सबसे पहले क्या यूज किया? पत्थर यूज किया. दिखता क्या है सामने? पत्थर. So we use stone, right? तो stone age बना. आप अगर हीटिंग देखोगे, हीटिंग अगर किसी मिनरल का हीटिंग हो जाए तो सबसे पहले कॉपर बाहर आता है. यू नीड मोर हीटिंग फॉर आयरन. तो पहले जो मेटल यूज किए वो कॉपर, टिन, आर्सेनिक ये थे जो कि जल्दी मेल्ट होकर के बाहर आते. कभी एक बार ऐसे हुआ कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा हीटिंग किया कॉपर के लिए, फिर उनको लगा कि कुछ दूसरा मेटल आया, आयरन मेटल. तो सिंपल सी बात है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट? पहले स्टोन एज, उसके बाद कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, क्योंकि कॉपर और टिन मिक्स करके ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज. कहां रट्टा मारना है आपको? People don't understand the logical flow and they put a lot of stress on by hearting facts, but this is not true. Clear? और ये पूरा जो हमारा पढ़ाई है ऐसे ही होगा, लॉजिकल फ्लो के साथ, and we will try to understand history in that manner. Logic, if you apply, that reduces component of by hearting. मैंने एग्जांपल देके आपको समझा. ये सिंपल एग्जांपल. There are many other aspects we will discuss in this manner, right? Actually, one thing, लोग बोलते हैं there's little scope for logic, understanding and analysis. I tell you one thing, सबसे ज्यादा सवाल इस कंपोनेंट के ऊपर है मेंस में. एनालाइज, इवैल्यूएट, एग्जामिन, असेस, क्रिटिकली एग्जामिन. क्या है ये सब? आप निकालना क्वेश्चन पेपर. मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर विश्वास मत रखना. यू ओपन द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. आपको क्या पूछा जाएगा? असेस द रोल ऑफ अशोक in the decline and disintegration of Maurya Empire. Assessment देना है, मतलब इसका मतलब to what extent अशोक was responsible, उसका एनालिसिस चाहिए आपके पास. तो अशोक की पॉलिसीज क्या थे, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या? He stopped the policy of war. Does that mean other enemies became emboldened? मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ अभी क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक ना. सो इस तरह का एनालिसिस रिक्वायर्ड है. उसकी एक पैसिफिस्ट पॉलिसी थी गंगा घोष वाली. उससे डिड ही इग्नोर द मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस? तो ये सारी बातें डिस्कशन का पार्ट है एंड यू कैन इजीली राइट द आंसर. इसके कंपैरिजन में आपको मगर ये बोल दूं कि जो प्लेटो का जो एक फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट था, देयर इज लॉट ऑफ फिलोसॉफी इन्वॉल्व्ड. उसको समझाने के लिए 2-3 घंटा चला जाएगा, मोर देन दैट. तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज. अब कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करना है बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड. देयर आर पीपल हु आर गुड एट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग इट, एनालाइजिंग इट. दे शुड प्रेफर दिस सब्जेक्ट. देयर आर पीपल हु आर गुड एट थिंकिंग, राइट? दे आर गुड एट कंटेम्पलेटिंग, दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. पॉलिटिकल साइंस इज गुड ऑप्शन. तो कौन सा गुड कौन सा बैड ऐसे नहीं होता है. दैट डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड. तो ये देखो, आप अगर जो दिया है उसको समझ करके आप लिख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, यू आर गुड टू गो, राइट? सो दीस आर बिट्स. व्हाट इज नीडेड इज राइट स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन टू स्कोर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये समझ में आया मिथ्स क्या है ना? नाउ लेट अस लुक एट द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना? आपको पता है क्या, मैं कितना छोटा कर सकता हूँ हिस्ट्री के सिलेबस को? इतना छोटा कर सकता हूँ. इतना बड़ा कर सकते हैं यूपीएससी के सिलेबस का कॉपी जो है आप डाउनलोड करके देख लो है. एंड आई कैन डू द सेम विद पीएसआर एज वेल by writing all the sub points. So don't really get scared because of this. Paper 1,
पेपर 2 सिंपल है, दो सेक्शंस होते हैं हर उसमें। पेपर 1 सेक्शन ए एंशिएंट इंडिया, पेपर 1 सेक्शन बी मिडिवल इंडिया, पेपर 2 सेक्शन ए मॉडर्न इंडिया, पेपर 2 section B modern world, as simple as that, right? And please understand, we only have modern world, there is no ancient medieval world history, right? So we are supposed to only study modern world history, right? As far as India is concerned, all three components are there, ancient, medieval and modern. ये ठीक है, इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए, right? Let's dig little bit deeper as to what content do we see in syllabus, ठीक है? अब ये जो है ना, ये क्या किया हमने, बताया क्या? सिलेबस में आपको इसको डैश करके कुछ चीजें सामने होंगी। I have picked up only the titles of those syllabus topics. UPSC ऐसा भी सिलेबस दे सकती थी, बताया क्या? But they have mentioned everything, ठीक है? इसमें लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फिर आर्कियोलॉजिकल में कौन से, इसमें कौन से रिलीजियस सेक्युलर सोर्सेस, राइट? इसमें फिर डिफरेंट इंस्क्रिप्शनल या फिर न्यूमिस्मेटिक जिसको बोलते हैं, कॉइन्स का सोर्सेस, सो दैट वुड गो ऑन एक्सपांडिंग, राइट? जैसे कि रियलिज्म में किया था मैंने, ठीक है? सो एवरीथिंग इज बीइंग रिटन इन द सिलेबस, दैट्स व्हाई इट इज बिग, अदरवाइज इट इज नॉट दैट बिग, राइट? तो सोर्सेस इज द फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज हिस्ट्री सोर्सेस के बेसिस पे लिखा जाता है और हमको क्या लगता है उसके बेसिस पे नहीं। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, राइट? तो वी विल टॉक अबाउट दिस सोर्सेस, देन prehistory and proto-history. As we know, we have discussed this in GS lectures, that the time period from where you don't get any kind of records, either written or oral, that time period is called prehistory. And time period from which you get some record, but you are not able to read them, understand them, make sense of it, that is called proto-history. And Indian context में prehistory का Stone Age के 4 parts, Paleo, Meso, Neo and Chalcolithic, right? Proto-history में क्या आता है? Indus Valley civilization. That is what we are supposed to study here, right? तो इन्होंने प्रोटो हिस्ट्री में ये एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ फिर इसी को प्रोटो हिस्ट्री क्यों नहीं बोला? ये बहुत सिंपली हम जीएस में बोल देते हैं कि दिस इज प्रोटो हिस्ट्री, बट द पॉइंट इज स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मैच्योर फेज है उसकी पहले भी मिलता है, तो उसको प्रोटो हड़प्पन भी बोला गया और अर्ली हड़प्पन भी। इसके ऊपर डिबेट है हिस्टोरियंस में, वो डिबेट पढ़ना है हमको, उसके बाद सीधा सवाल आ चुका है पहले, राइट? तो स्क्रिप्ट पहले थी, ठीक है? मतलब प्रोटो हिस्ट्री थोड़ा पीछे भी है इन सम न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट, लेट न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट, इसलिए क्या बोला गया उधर प्रोटो हिस्ट्री, राइट? देन वी स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? मेगालिथिक कल्चर्स थे इंडिया, उनका क्या अलग अलग एस्पेक्ट सिग्निफिकेंस है वो पढ़ना है। मेगालिथिक मतलब मेगालिथ, बहुत बड़े स्टोन इन लोगों ने अपने ग्रेवयार्ड के अराउंड रखे हुए, and we get most of the information about this culture from the graveyards. That is what is called megalithic culture, right? Then Aryans and Vedic period, right? We will talk about both Vedic period as well as later Vedic period, and then period of Mahajanpadas. ठीक है? मैंने आपको एक फ्लो बताया, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। तो स्टोन एज यहाँ पे, कॉपर एज कैलकुलिथिक में है, ये ब्रॉन्ज एज है और ये आयन एज शुरू होता है। मेगालिथ के साथ क्या करें? आयन एज। Number of iron objects are found in megalithic burials. उन्होंने जो अपने जो डेड बॉडीज बेरी किया ना वहां पे। Now यहाँ पे एक लॉजिक है, Vedic period is divided to 2 parts, Root Vedic and Later Vedic. यहाँ पे their political unit was Jana, यहाँ पे जनपद और यहाँ पे महाजनपद। ये evolution है, that is evolution, material development, expansion, urban centers, then the idea of kingdom. So out of Mahajanpadas, kingdom formation वो 16 थे, उसमें से 4 were very powerful, वत्स, अवंती, कोसल, मगध। मगध was the most powerful, इन सबको खत्म करके उसका एम्पायर बना, राइट? तो रंडक डायनेस्टी, शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टी, उनको ओवरथ्रो करके मौर्य एम्पायर। लॉजिकल फ्लो है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता है दैट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। आई एम नॉट सेइंग दैट बाय हार्टिंग इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, दैट इज नॉट इन एनी केस, एनी सब्जेक्ट। आपको एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे लोग बोलते हैं इतना इंफॉर्मेशन कैसे याद रखें, बिकॉज फॉर्चुनेटली आई आल्सो हैव टू टीच पीएसआई। उनके कंप्लेंट्स क्या होते हैं पता है? कि सर बहुत थिंकर्स है, कितने नाम याद रखें?
और किसने क्या बोला, कैसे लिखे. In every subject there is some chunk of information that you are supposed to keep on revising in order to remember that. Getting this? तो यहाँ पे वो कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग का कंटेंट ज्यादा है. तो हर सब्जेक्ट के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको भी कैसे डील करना है, यू डिस्कस दैट एट लेंथ एज पार्ट ऑफ आवर बैच. सो ये है पीरियड ऑफ महाजन पदार्थ का. उसके बाद मॉडर्न एम्पायर आ जाए, देन पोस्ट मौर्य पीरियड. ये जो फोकस है मौर्य एम्पायर पोस्ट मौर्य, नॉर्थ पे मोस्टली, राइट. तो उस समय डेक्कन में, ईस्ट में, साउथ में क्या चल रहा था. सो अर्ली एंशिएंट स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, डेक्कन एंड ईस्ट, वो कवर हुआ इसमें, राइट. देन गुप्त, वाकाटक एंड वर्धन डायनेस्टीज. इस समय पॉलिटिक्स कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर कैसा था, इकोनॉमिक क्या थे, राइट. देन रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, राइट. एंड ये जो है दिस इज, ये इसको तो मतलब अलग से देखने की भी जरूरत नहीं. थीम्स है, ये टॉपिक कैसे होगा पता है क्या, अलग अलग थीम्स के नाम और उसमें किसने कंट्रीब्यूट किया वो पीछे आपको मिल जाएंगे इन चैप्टर्स में. गेटिंग दिस? ओके, इस तरह का लास्ट टॉपिक है. इंटरेस्टिंग बात ये है, रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, ये जो है ये अर्ली मिडिवल में ओवरलैप होते हैं. तो कई बार कंफ्यूज हो गया इसको कहां पढ़ना है. रीजन बीइंग, historians have different opinions regarding as to where ancient ends and where medieval begins. So a period of overlap comes in. तो यूपीएससी ने क्या है, कुछ नाम इधर दिए, कुछ नाम उधर दिया. यूपीएससी ने जिसके नाम इधर दिए इधर पढ़ेंगे और एक्सपेक्ट करेगी इधर सवाल आए. ऑब्वियसली जो उधर दिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है, यूपीएससी का सिलेबस. हमारा क्राइटेरिया ये नहीं कि हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं, वो कंटेंट का क्राइटेरिया हमारा, राइट. सो वी विल गो बाय यूपीएससी सिलेबस, राइट. सो ये एंशिएंट का है. मिडिवल हिस्ट्री, इसमें दो टॉपिक्स जो है अर्ली मिडिवल के हैं, टू टॉपिक्स ऑफ अर्ली मिडिवल. सो अर्ली मिडिवल इंडिया 750 टू 1200, यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर किए. एंड देन कल्चरल ट्रेडिशंस आर कवर्ड हियर, फिलॉसफीज, कल्चर्स, रिलीजियस डेवलपमेंट्स इज कवर्ड हियर. टाइम पीरियड इज सेम, 750 टू 1200 ACE, राइट. देन सेंचुरी वाइज दिया हुआ है. तो 13-14 सेंचुरी दिल्ली सल्तनत का है क्लियरली, राइट. 13-14 सेंचुरी, उसी में फिर विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, राइट. अब ये 13 सेंचुरीज है, यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है, प्राइमरली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है. सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक यहाँ पे कवर किया. सेंचुरीज आर सेम. लाइकवाइज 15-16 सेंचुरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 15-16 सेंचुरी सोसाइटी कल्चर. गेटिंग दिस? तो इसमें क्या आता है, the later dynasties of Delhi Sultanate and विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम एंड अर्ली मुगल. उन्होंने क्या किया पता है कि बाबर और हुमायूं को इसमें डाल दिया पीरियड वाइज सिलेबस में. बाबर, हुमायूं आर केप्ट हियर. अकबर एक अलग चैप्टर है, राइट, whether you like it or not. As long as UPSC syllabus is like this, we have to follow this, right? We cannot go by what politicians say, right? एग्जाम पास करना है ना, ठीक है. और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं बनना है ना. और चाहे कोई भी हिस्टोरियन देखो आप, राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, चैप्टर का नाम यही होता है, अकबर द ग्रेट. जेल मेहता लेफ्टिस्ट नहीं है. अर्ली मिडिवल, सॉरी मिडिवल की जो ऑथर है, उन्होंने 3 बुक्स लिखे, 3 वॉल्यूम्स. तो वो सही में ही इज नॉट लेफ्टिस्ट, बट जेल मेहता ने भी वही टाइटल दिया, अकबर द ग्रेट, बिकॉज वो इम्पैक्ट था उतना, राइट. अकबर के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, सो यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन अकबर, राइट. देन मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी, आप देखो 5th सेंचुरी के ऊपर आ गया. सो दिस इज अ ह्यूज नेम इन द हिस्ट्री समहाउ, मिडिवल हिस्ट्री, राइट. सो मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी, यहाँ पे कौन है, शाहजहां, औरंगजेब और कुछ हद तक जहांगीर का समय, राइट. कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, सो मुगल सेंचुरीज कवर किए पहले इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन. देन कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर. 18th सेंचुरी, ये लेटर मुगल टाइम बोलता है इसको. तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ रीजनल स्टेट्स इमर्ज्ड, उसमें से मराठा एम्पायर तो मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन 18th सेंचुरी, दैट वी स्टडी हियर. पेशवा का मेंशन है, शिवाजी's administration, शिवाजी's kingdom is mentioned here and Peshwa is mentioned here in the syllabus, right. हो गया मिडिवल. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट. यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, हाउ यूरोपियंस केम. यूरोपियंस तो एंशिएंट टाइम से आ रहे हैं, तो अब क्या डिफरेंस था, राइट. वो पढ़ना है, कंपनी क्यों बनाई इन लोगों ने,
पहले पॉलिसी क्या था, चार्टर क्या था, राइट, ये सब कुछ. Then British expansion in India, the serious contenders to control India as far as Europeans are concerned, were British and French to three Carnatic wars, and French are eliminated in a way, not completely though, because Napoleon comes back again. That's a different thing. Napoleonic wars, right? So expansion of British in India, Carnatic wars, Plassey, Buxar, Anglo-Mysore wars, 4 Anglo-Maratha wars, right? ये होने के बाद अल्टीमेटली एक्सपांशन बढ़ जाता है. अल्टीमेटली द अनेक्स अवध, द अनेक्स रणजीत सिंह किंगडम आफ्टर हिज डेथ, द अनेक्स सिंध वगैरह वगैरह, राइट. अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है. व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डू वी सी हियर? बट अगेन इट इज नॉट दैट सिंपल. आपको ये भी पढ़ना है कि व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस ऑन अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज. वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म? यस, there was influence of Orientalism on Warren Hastings का government, Warren Hastings का जो rule था. And when do we see influence of utilitarianism, liberalism, free trade thinking, evangelicalism increasing on British government? तो ये simple GS का study नहीं है, हर ऑप्शन में डेप्थ होता है. So many people think on this like उधर भी है इधर भी है तो दोनों हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. फिर पीएसआई का तो पूरा पेपर है, पेपर 2 जीएस, बट वो ऐसा नहीं देख सकते आप उसको, इधर डेप्थ बहुत ज्यादा है, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन एन इन डेप्थ मैनर. एंड ये तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, पीएसआई भी पढ़ा है ना, तो फिर वो आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी लूसिडली कि व्हाट इज फ्री ट्रेड थिंकिंग, व्हाट इज लिबरलिज्म, व्हाट इज यूटिलिटरियनिज्म. लिबरलिज्म का एक पार्ट है, जेरेमी बेंथम ने शुरू किया था, जेएस मिल इज अनदर कंट्रीब्यूटर इन दैट, ठीक है. तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल. व्हाट इज ओरिएंटलिज्म, वो कंस्ट्रक्ट क्या है ओरिएंटलिज्म, ये सारी बातें इन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. उसका इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रेन थ्योरी. व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियंस, हाउ डू दे लुक एट ड्रेन थ्योरी, व्हाट इज क्रिटिक ऑफ देयर असेसमेंट, व्हाट इज द क्रिटिक ऑफ ड्रेन थ्योरी का असेसमेंट, है ना. ठीक, तो सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग भी है. The moment you start taking interest in this subject, any subject for that matter, तो अलग अलग जब डायमेंशन पता चलते हैं तो अलग आनंद होता है कि अरे पता ही नहीं था, इस तरह से भी देखा जा सकता है, पता नहीं था. सो दैट वुड कम हियर, राइट. देन ऑब्वियसली इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सोशल कल्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पे जो थे, डिफरेंट सोशल कल्चर डेवलपमेंट्स इन दिस इरा, ठीक है. देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये अलग है वो अलग है. आर यू गेटिंग दिस? And then Indian response to British rule. Getting this, so British rule का आना, expansion, administration, social cultural developments, reform movements, ये सगळं बोलू बरं. We'll talk about all these things in detail later on. Then Indian response में क्या है? This is not about Indian national movement that begins with moderates. ये क्या है पता है क्या? The early revolts, rebellions, peasants के, tribals के, and then revolt of 1857. That is the early Indian response to British rule. समझ में आ रहा है आपको? अलग अलग जगह पे लोगों ने रिबेलियन किया था, रिवोल्ट किया था, peasants ने, tribals ने. वो क्यों हुआ? उसका in depth analysis is what is required, right? So where it comes, factors leading to birth of Indian nationalism. What factors contribute? यहाँ पे क्या है बता क्या? Indian nationalism का rise, policy of the British government which is responsible for growth of Indian nationalism indirectly, obviously, like Lytton, for example, right? Then what role the English education, Western education played? What role social religious reform movements played in shaping Indian nationalism? वहां से लेकर के Indian nationalism की birth तक, है ना? Birth of Indian nationalism मतलब moderates ने जो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से कांग्रेस. प्लीज डोंट मेक इट पॉलिटिकल. मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में कि वो जो कांग्रेस थी वो अलग थी और ये कांग्रेस अलग है. ये कांग्रेस उसको क्लेम नहीं कर सकती, राइट, विद ऑल ऑनेस्टी आई एम सेइंग दिस, राइट. उस कांग्रेस में सारे थे, मतलब जो बीजेपी है आज पार्टी, उनकी जो बीजेएस नाम की पार्टी थी पहले, भारतीय जनसंघ, उसके जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कांग्रेस में थे. इस कांग्रेस में, हाँ, बाद के कांग्रेस में नहीं. 1950 में रिजाइन करके उन्होंने अलग पार्टी बनाई. सो ये खेल मत करो यहाँ पे, है ना, ठीक है. लेट्स नॉट डू दैट, राइट. ओके,
दूसरी बात, सिलेबस क्या बोल रहा है? बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आप आंसर में नहीं लिखोगे यूपीएससी सिलेबस इज रॉन्ग, प्राचीन काल से हम राष्ट्र, नहीं, एक सेकंड, you go by the syllabus, not by any kind of propaganda, any kind of ideology here. We are talking about the birth of Indian nationalism. Okay? यहाँ पे moderates और extremists का era cover किया है, along with those factors which led to Indian nationalism. Then rise of Gandhi, Gandhian freedom struggle plus Gandhian काल में जो बाकी strands है, other strands in national, ये भी cover करना है हमको. Constitutional developments बोला है 1858 to 1935, right? I tell you one thing, early structure of British Raj में early acts आएंगे, regulating act, British India Act, different charter acts that we see, 1793, 1813, 1833, 1853, right? And यहाँ से आएगा जो है Government of India Act 1858, GOI बोलेंगे उसको, Government of India Act 1858. ठीक है, देन काउंसिल्स एक्ट है कई सारे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, राइट? तो 1861 में आया, इसका ईयर एग्जैक्ट देख लो, आई थिंक 1892 या 93 में कुछ है, मॉडरेट्स के समय. उसके बाद 1909, हाँ नहीं रुको, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 एंड 1935. ये सारे एक्ट्स पढ़ने हमको यहाँ पे 35 तक के, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया में जो गवर्नमेंट बनाया ब्रिटिशों ने, वो इन एक्ट के थ्रू शेप किया गया, राइट? एंड लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वी सी इन द एक्ट ऑफ 35 आर कॉपीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस कैन आल्सो बी लुक्ड एट एज ए बैकग्राउंड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आ रहा है आपको? सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. अदर स्ट्रैंड्स में क्या है? रिवोल्यूशनरीज, राइट? लेफ्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, पीजन मूवमेंट्स, ये सब कुछ आता है इसमें. देन देयर इज वन मोर स्ट्रैंड, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म. Politics of separatism. Muslim League का तो आप जानते हो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. There are other strands as well. पेरियार ने द्रविड़स्थान की मांग की थी, रामास्वामी नायकर की, वो नहीं हुई, बात अलग है, राइट? तो सेपरेटिस्ट स्ट्रैंड्स कौन से, वो पढ़ने हमको. कंसोलिडेशन एज ए नेशन. अब यहाँ क्या शुरू हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट शुरू हुआ. So consolidation as a nation means what? What policies did we adopt when India became independent? उसमें फिर वो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है, राइट? उसके बाद हमारे जो अलग अलग पॉलिसीज थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, साइंस एंड टेक की पॉलिसी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ सकता है उसमें, राइट? नेहरू का फॉरेन पॉलिसी इन इनिशियल इयर्स, राइट? है ना? उसके बाद आप जानते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक पॉलिटिक्स देखने को मिला इंडिया में, उसमें कास्ट और एथनिसिटी का बहुत पॉलिटिक्स हुआ, राइट? सो दिस टू फैक्टर्स आफ्टर 1947, इसमें दलित मूवमेंट को सेपरेटली उसमें मेंशन किया गया. दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी आर सपोज्ड टू स्टडी. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. सो दिस इज सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट? मॉडर्न वर्ल्ड, ये हम क्विकली देख रहे हैं, राइट? We would have one lecture where I would talk about syllabus a little bit more in detail, right? Don't worry about that. Section B of paper 2, enlightenment and modern ideas. Do you know the word modern itself ignites a debate among historians? What is modern and what is so modern about the modern? Can we call enlightenment as modern? Is it that modern is only identified with enlightenment ideas of reason and science? तो ये पढ़ना है थोड़ा सा डेप्थ के साथ. Getting this, what we study in GS is quite general, right? यहाँ पे थोड़ा डेप्थ के साथ पढ़ना है, एनालिसिस के साथ. And we are talking about the enlightenment that happened in Europe. हमारा enlightenment हम कहाँ पढ़ेंगे? Modern history में, right? Social reform movements में Ram Mohan Roy is considered as father of Indian enlightenment, or was he truly father of Indian enlightenment? Or more fundamental question, was it really enlightenment? Can we really call it Renaissance? इसका डिबेट है यार हिस्ट्री में, अलग अलग हिस्टोरिक, काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है, हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट? ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स. अभी क्या है मैं आपको समझाता हूँ. ये दुनिया के बारे में बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, राइट? दिस इज वंडरफुल काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड even international politics.
आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आगे के पॉइंट इससे ही जुड़े हुए हैं। 1648 was an important year as far as world history is concerned from the perspective of this thing. Obviously, modern ideas की basis पे modern politics आई, कोई deny नहीं कर रहा है. But if you talk about world system as such, right? You know, 1648 year is important because यहाँ पे Treaty of Westphalia sign हुआ. What is Westphalia? It is a province in Germany. तो वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ. इस एग्रीमेंट से कुछ कॉन्सेप्ट्स बाहर आए. इनफैक्ट दिस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया एंडेड 30 इयर्स वॉर. उसको छोड़ो, वॉर एंड करने वाले कई सारे एग्रीमेंट्स. बात यह है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रीटी? द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी. Concept of territorial sovereignty, and based on that the concept of nation state emerged from Treaty of Westphalia. यहां से दुनिया बदली, मॉडर्न दुनिया बनी. यहां से आगे वर्ल्ड सिस्टम को गवर्न करने वाला प्रिंसिपल कौन सा है? टेरिटोरियल सॉवरेनिटी. आप बताओ ना मुझे, आज हर देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देता है? या फिर if I can rephrase the statement, can any country think of ceding even an inch of territory? Nonsense. The most important concept today is territorial sovereignty. तो उसका birth कहाँ पे हुआ? Treaty of Westphalia. Clear? Now the question is, what was there before Treaty of Westphalia? दुनिया कैसी थी? कौन सा प्रिंसिपल गवर्न कर रहा था दुनिया को? बताओ. Imperialism. But the question is, what is imperialism and how is it different from colonialism? ये सवाल आता है ना. ठीक है, आप इंग्लैंड में जाके पूछोगे उन लोगों को, बोले उनको पूछो colonialism, बोलते नहीं, वो imperialism था, हमारा एम्पायर था, not colonialism, right? What is the difference? Difference is, पहले imperialism को समझते हैं. The word imperialism, इसका root word क्या है? Empire. एम्पायर की टेंडेंसी क्या होती है? एक्सपांड होने की. पुराने समय सम्राटों को बोला जाता था, सम्राट वो अच्छा होता है जो एम्पायर को बढ़ाता है. तो इंपेरियलिज्म इज अ टेंडेंसी टू एक्सपांड द एम्पायर, राइट? व्हेन यू एक्सपांड द एम्पायर, दैट मींस यू इंक्रीज योर टेरिटरी एंड यू डू दैट एट द एक्सपेंस ऑफ समबडी एल्सेस टेरिटरी. किसी और के टेरिटरी को लेकर के आप अपना टेरिटरी बढ़ाते हो, तो जो कोई और है वो अपनी टेरिटरी ऐसे ही देगा क्या आपको? नहीं. तो क्या होगा? वॉर. यूरोप वाज सीथिंग विद वॉर्स, राइट? 80 इयर्स वॉर, 30, अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? 80 इयर्स वॉर मतलब 3 जनरेशन खत्म होते हैं, पता है आपको? 30 इयर्स वॉर. तो हुआ ये, the European nations and their leaders analyzed as to why there are recurrent wars in Europe. And they came up with the answer that the imperialism is the cause behind recurrent wars in Europe. So if you want to stop the wars, if you want peaceful Europe, you are supposed to get rid of imperialism. And imperialism को खत्म करना मतलब टेरिटरी बढ़ाना बंद कर देना, मतलब हर एक की टेरिटरी डिफाइन करना. और एक बार डिफाइन हो गई तो हर कोई एक दूसरे टेरिटरी का रिस्पेक्ट करेगा. वही वो कॉन्सेप्ट है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, राइट? So the concept, principle of territorial sovereignty replaced the principle of imperialism. Only in Europe, hypocrisy. Only in Europe. So these European powers started expanding the empire outside, right? उसको imperialism बोलते थे, but वो था क्या? Colonialism था. Imperialism में क्या होता है? If you become part of the empire, you are equal to the earlier citizens of the empire. We were never equal to the British citizens, right? We were exploited for the sake of Britain. That is colonialism. So establishing political control, military control over alien territory, and then exploiting it economically, that is colonialism. समझ में आ रहा है आपको?
तो फिर अलग पढ़ना पड़ेगा हमको। और दूसरी बात, यूरोप में इंपीरियलिज्म खत्म हुआ, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी आई, ऐसा सही में हुआ क्या? नॉट रियली। उसके बाद फिर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है, 7 इयर्स वॉर है, नेपोलियनिक वॉर्स है, कोई ना कोई होगा ना, फिर वो एम्पायर का सपना लेकर के आएगा नेपोलियन। और बाद में फिर वर्ल्ड वॉर 1-2 भी देखा हमने 20th सेंचुरी में, उसका भी सामने है वर्ल्ड वॉर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है यार, ये लोग वॉर रोकने के लिए कुछ बनाते हैं, फिर दुनिया के सबसे बड़े वॉर करते हैं। उसका क्या रीजन है? इसको बहुत एनालाइज किया गया है, बट आई थिंक वन थिंग, इसका एक मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है और दूसरा एक अलग इंटरप्रिटेशन। मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? कैपिटलिज्म में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कॉलोनीज को बढ़ाना। तो ये जो वॉर्स थे कॉलोनीज के लिए थे, एक रेस लग गई किस चीज की, किसकी कितनी कॉलोनीज, उस रेस में अब रेस है, सो सम स्टेट्स विल गो अहेड, सम स्टेट्स विल लैग बिहाइंड। जो पीछे रह गए उन्होंने कैचअप करने की कोशिश की, जिनका डोमिनेंस बना रहता है, वो दूसरा अगर उभर रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट वर्ल्ड वॉर 1 and 2। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको पूरा सिलेबस ना, आगे जाकर इंटरव्यू में पढ़ना है हमको, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 1 and वर्ल्ड वॉर 2। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? आगे जाकर यूरोप ने ये सोचा, लिबरल इंटरप्रिटेशन लिबरलिज्म का, that the concept of nation state is itself responsible for wars. So we have to go beyond nation state now. और इंपीरियलिज्म की वजह से हो रहे थे, तो ये लेकर क्या है, आप क्या बोल रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, टेरिटरी खत्म करो, दुनिया एक बनाओ। यूरोप में दे हैव क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड ईयू, यूरोपियन यूनियन। बोलना आ रहा है क्या? अब ये लेसन कहां से सीखे इन लोगों ने? एक्सट्रीम नेशनलिज्म क्रिएट्स वॉर्स। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। दुनिया में जब कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म था, उसमें उसको हेल्प करने वाला एक फैक्टर कैपिटलिज्म भी था। उससे एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम बना, राइट? एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को ओवरथ्रो करके जब दूसरा सिस्टम लाया जाता है, उसको क्रांति बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, राइट? है ना? तो ये मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन की बात हो रही है। यू टॉक अबाउट व्हाट? रशियन रिवोल्यूशन, बोल्शेविक रिवोल्यूशन एंड डिफरेंट अदर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस। ऐसे लग रहा था दुनिया को कि कैपिटलिज्म में, दूसरा कम्युनिज्म में, इनका आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, और इसके बीच में कुछ और उभर करके आता है, सभी को बैफलिंग, फैसिज्म। दैट इज काउंटर रिवोल्यूशन, and that comes with extreme nationalism, and that leads us to, along with other factors obviously, World War II. सिलेबस उसको ऐसे अरेंज किया उन्होंने, है ना? तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है? ऑब्वियसली वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसको पोस्ट वॉर वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट वॉर वर्ल्ड। क्योंकि ऐसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी हैवंट विटनेस्ड ए वॉर ऑफ दैट स्केल। उतना बड़ा स्केल का वॉर कभी देखा नहीं हमने। तो पोस्ट वॉर वर्ल्ड, इट्स आल्सो कॉल्ड कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं उसको? कोल्ड वॉर। फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स शुरू हुआ उसमें, यूएस का ब्लॉक, यूएसआर का ब्लॉक। हमने अपना एक रास्ता चुना नॉन अलाइनमेंट का, व्हिच इज क्वाइट in news and in discussion these days, right? Then liberation from colonial rule, किसका? हमारा नहीं, दुनिया भर में। So World War II के बाद the process of decolonization started, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि यही पे हुआ था। मैं फिर से उसको चेंज करता हूँ मेरे वर्ड्स। After World War II, the process of large scale decolonization started, right? In 18th century, अमेरिकन कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट, वो भी डिकोलोनाइजेशन था, राइट? लेकिन लार्ज स्केल, इन द सेंस एम्पायर्स गिरना शुरू हो गया। ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टेड कोलैप्सिंग, फ्रेंच एम्पायर स्टार्टेड कोलैप्सिंग, स्पेनिश एम्पायर स्टार्टेड कोलैप्सिंग, डच एम्पायर स्टार्टेड कोलैप्सिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उससे उसको क्या बोलोगे? लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। अफ्रीकन कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, राइट? इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का फॉर दैट मैटर। तो ये स्ट्रगल आपको पढ़ना है उनका, लिबरेशन स्ट्रगल। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन से तीसरी दुनिया बनी। ये डेरोगेटरी क्लासिफिकेशन है और ये वेस्टर्न क्लासिफिकेशन है उनकी नजर से, लेकिन वो यूज होता है, ठीक है? वे हुआ क्या बताया क्या? वेस्टर्न स्कॉलर्स दे केम अप विद दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन द कोल्ड वॉर सिचुएशन।
उन्होंने कहा कि यूएस लेड जो वेस्टर्न देशों का कम्युनिस्ट ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड, राइट. यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक इज सेकेंड वर्ल्ड. और जो बाकी देश हैं जो कि न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, दे आर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड. नाउ थर्ड वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय underdevelopment, obviously because of number of factors. One of them was colonial exploitation. Obviously, ये भी factor है कि we are not rational, we could not develop scientific traditions, etc., etc., etc. But yes, the major factor was colonial exploitation. बाकी factor भी हम पढ़ेंगे, right? So underdevelopment is an important question that these countries in third world even today face, right? Unification of Europe, ये क्या है? अभी जो बता रहा था मैं, इसका एक जर्नी है. पहले क्या बना पता है क्या? ECSC. क्या बना? ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. इन्होंने, अरे ये लोग बहुत एनालाइज करते हैं ना, यूरोपियन लोग बोलते यूरोप में वॉर क्यों हो रहा है. एक बार उधर बैठे थे वेस्टफालिया में, इस बार फिर से सोचने लगे क्या करें, है ना. तो ये डिसाइड हुआ कि जर्मनी इशू है मेजर, ठीक है. तो जर्मनी और फ्रांस का जो राइवलरी है उसको खत्म करना पड़ेगा, और इन दोनों का राइवलरी कोल एंड स्टील के ऊपर है. तो लेट अस क्रिएट कोऑपरेशन, पैन यूरोपियन कोऑपरेशन इंक्लूडिंग जर्मनी, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा, ठीक है. तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ा इनका कि अगर एक सेक्टर में इकोनॉमी के हम कोऑपरेशन कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट एक्सटेंड दैट टू द नेक्स्ट सेक्टर, एंटायर इकोनॉमिक सेक्टर. सो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब EEC, क्या बना? EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन, राइट. फिर उन्होंने ये सोचा, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उसको बाद में पढ़ाता हूं आपको, कि अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है तो व्हाई नॉट कोऑपरेट इन अदर सेक्टर्स, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, है ना. तो एक जनरल कमीशन बनाया, यूरोपियन कमीशन. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 51 में है शायद, 1951, 57 में, ये मैं जानता हूं, ये 68 में. और आगे जाकर के 90s में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन पर. इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव यूनियन. How many of you know that any European person of that EU, right? आप कौन मैटर नहीं करता, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, आप उठ करके किसी भी देश में जा सकते हो. यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वीजा. और अगर आप बाहर से जा रहे हो, आप यूरोपियन यूनियन घूमना चाहते हो, यू नीड ओनली वन वीजा, शेंगेन वीजा, दैट्स इट. इतना वो इंटीग्रेशन कर चुके हैं. तो पॉलिटिकल साइंस में इसको बोलते हैं कि इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल स्टेट. ट्रांसनेशनल स्टेट, नेशन स्टेट हम जानते हैं, जो राष्ट्र है वो राज्य है, राइट. लेकिन राष्ट्रातीत राज्य मतलब स्टेट गोइंग बियॉन्ड, बट वो हमारा टॉपिक है नहीं, हम इतना ही पढ़ेंगे. यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, दैट्स इट. Disintegration of USSR and rise of unipolar world, right? So what we see in 1991, in fact, the years of 1989-90 were quite tumultuous years in world politics, right? East Europe जो कम्युनिस्ट था, वहां पे सारे कंट्रीज में कम्युनिज्म कोलैप्स होने लगता है. 89-90 बर्लिन वॉल कोलैप्स, इसने डिवाइड किया था जर्मनी को. इवेंचुअली दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ. उससे आज के सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड फ्यू ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज केम अप, राइट. यूक्रेन इज वन ऑफ देम, बाय द वे. यूक्रेन वॉर चल रहा है राइट नाउ, राइट. तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ दुनिया के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, राइट. एंड व्हाट वी सी इज कोल्ड वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड है, ये बाइपोलर था. कैसा था? बाइपोलर मींस व्हाट? 2 पोल्स ऑफ पावर, वन मॉस्को, अदर वॉशिंगटन, राइट. एक पोल गया, एक ही पोल बचा, वॉशिंगटन. तो यूनिपोलर वर्ल्ड बना, अमेरिकन हेजीमोन, द एंटायर वर्ल्ड डोमिनेंस, राइट. ये बात अलग है, चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज इट नाउ, बट हमारा इतिहास पे रुक जाता है. बाकी वो करंट में पढ़ेंगे आप क्या चल रहा है. Got it? This is the syllabus. Okay. Now let's look at some of the questions so that we get some idea as to how we are supposed to study. So a few questions from different sections, right? So look at this one, 2021 का paper 1 है. So question number 2 is, do you agree that ecological factors influence the flow and ebb of purple civilization? Comment. क्या पूछा?
हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितने आर्टिफैक्ट मिले हैं, कौन से मिले हैं, हाँ, ये पूछा आपको। क्वेश्चंस आर वेरी एनालिटिकल, इसीलिए मैंने शुरुआत करते हुए बोला था ये जो मिथ बना करके रखा है लोगों ने, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड डेट्स एंड इंफॉर्मेशन। सो आई टेल यू वन थिंग, जो लिथिक एज है, राइट, वहां पे कई सारे बदलाव हुए, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बदलाव हुए, राइट, है ना। और उसमें से एक जो क्लाइमेट उभर करके आया, हम्म, वो कुछ साल तक चला, और यहाँ पे कुछ चेंजेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ, राइट। आपको पता है क्या, कई सारे साइट्स सिंध में मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, बहुत सारे साइट्स आज के राजस्थान में मिलते हैं, जो कि एरिड जोन है आज काफी हद तक, लेकिन उस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग थे। इसका स्टडी हुआ है, विल गो केस स्टडी बाय केस स्टडी, राइट। हमारे नोट्स में है सब कुछ कि कौन से हिस्टोरियन ने क्या स्टडी किया, कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया, क्लाइमेट के एक्सपर्ट ने क्या स्टडी किया, उसकी बेस पे हम क्या बात कर सकते हैं, किस तरह का वो क्लाइमेट था उस समय। तो ये बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो डिक्लाइन हुआ, द नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, वन रीजन इज हेरिडिटी इंक्रीज्ड, तो इकोलॉजिकल बदलाव हुआ उससे भी। फिर उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, नॉट गो इनटू इट राइट नाउ, हाँ, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर लेक्चर खत्म नहीं होगा, है ना। सो बात ये है, आपको एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा, उसके अलग अलग थ्योरीज क्या है देखने पड़ेंगे, और हर थ्योरी का एक लिमिटेशन हो सकता है, उसको काउंटर क्या किया गया ये भी पढ़ना पड़ेगा। सो दिस आर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ थरो डिस्कशन, एंड वी वुड डू दैट इन द क्लासरूम। आपके सामने मैं नोट रखूंगा यहीं पे, ठीक है, अलग कुछ नहीं, सीधा नोट, उसमें मैंने बोल्ड किए पॉइंट्स, वो सामने रख करके वो डिस्कस, ये कंटेंट आपके साथ सामने, और ये भी आर डिस्कसिंग, और इसके ये सवाल आएंगे, दैट इज व्हाट वी विल डू। आई टेल यू वन थिंग, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ विद द प्रीवियस बैच, मैंने बोला है उनको दैट आफ्टर द बैच इज ओवर, जो फ्रीडम टेस्ट मॉडल होता है ना हमारा, तो उसमें छोटे छोटे पेपर्स बना करके 250 का, शुरुआत में 125 का पेपर, and we will have thorough discussion with model answers. So I intend to plan this thing for you as well, answer writing practice after the batch is over. पहले पढ़ाई ठीक से, नोट्स बनाओ अपने माइक्रो, फिर हम फिर मिलेंगे once in a month, once in a week, whatever is convenient, and we will discuss the answers as well, right? Okay. So ये एक सवाल है। Then अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, how did वर्णाश्रम धर्म manifest the increasing social complexities in the Gupta and post-Gupta period arising from social and economic developments? क्या फैक्ट है इसमें? Purely analytical सवाल है क्या? Do you understand the evolution? Do you understand that the वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम सिस्टम, राइट। तो ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है क्या? वो था। तो वो जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज है अराइजिंग आउट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, उससे वर्णाश्रम धर्म में कुछ बदलाव हुए क्या? वो क्या थे? या फिर वर्णाश्रम धर्म सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे कैसे व्यक्त करता है? मैनिफेस्ट मतलब व्यक्त करना, मतलब एक्सप्रेस करना, ऐसा वो सवाल है। किती सुंदर प्रश्न आहे, एनालिटिकल आहे बरं, लिहिताना पण आनंद वाटेल तुम्हाला, कॅन एन्जॉय द रायटिंग एज वेल इफ यू अंडरस्टँड. The precondition is if you understand, right? Discuss transformation of Sikh community from Nirgun Bhakti sect into political military organization. तो नेचर बदला किसका? सिख कम्युनिटी का, वो पूछा है। ये मिडिवल का शुरू हो गया। सो 2 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट, 2 क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल, 2 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न, 2 फ्रॉम 2 3 जो भी है। तो ये फिर से ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड दी struggle that Sikhs had with Mughals, particularly starting with Guru Arjan's execution by Jahangir. तो वहां से फिर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है सिख कम्युनिटी में, वो पॉलिटिको मिलिट्री बनता चला जाता है, एंड दैट कल्मिनेट्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड खालसा। खालसा पंथ का सेपरेट मेंशन है सिलेबस में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रेन ऑफ खलजीज नोन एज खलजी रिवॉल्यूशन? क्या डेटा पूछा है? ऑनेस्टली बताओ मुझे, क्यों डरते हो आप? व्हाट काइंड ऑफ फियर डू यू हैव? अब बता रहा हूं ना, आप बस वो साथ में रहोगे, है ना, ठीक है, मैं आपसे करवा लूंगा। और देखो मैं आपको करवा सकता हूँ आपसे, लेकिन आपके घर में बैठ करके बोल नहीं सकता बुक ले बैठ, पर ये आपको करना है बस इतना।
बाकी मुझ पे छोड़ दे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया ना, ठीक है। हाँ, आई टेल यू वन थिंग, जब 2022 का पेपर आया, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था हिस्ट्री ऑप्शनल, वहां पे ऑप्शनल का पेपर आया, जितना पढ़ाया था ना वो नोट्स बच्चों के पास थे, और पेपर लेके आओ, ये सवाल उसका ये कंटेंट, ये सवाल ये कंटेंट, पहले नोट्स था उसके बाद सवाल, और इसका टेस्ट आगे आ रहा है, 23 का पेपर आएगा, ये फिर करेंगे आप। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? स्टैटिक है रे, डायनेमिक कुछ नहीं है यहाँ पे। जो सिलेबस में दिया उसके अलावा सेमी सवाल नहीं आता। द क्रेडिट डजंट गो टू मी, एनीबॉडी, सब्जेक्ट का नेचर वैसा है, राइट। और सवाल भी वैसे आते, क्या जो हुआ है उससे भी सवाल पूछेंगे ना, जो हुआ है उसको बदलो एक के पीछे जाकर के, नहीं तो पॉसिबल है नहीं। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू कैन रिलाई ऑन दैट कि हाँ ये सवाल आएंगे, मैं जानता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे डू यू एग्री बोला है, उसको चेंज करके बोलेंगे असेस टू व्हाट एक्सटेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। देखो मैंने सवाल चेंज कर दिया बैठे बैठे, उसके फ्लेवर चेंज होंगे, फ्लेवर, असेस, एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, इवैल्यूएट, डू यू थिंक, कमेंट, बट वो कंटेंट वही रहेगा। सो दैट इज द सेम प्रोपोजिशन एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न्ड। अभी मैंने आपको रिवॉल्यूशन का मतलब बताया थोड़ी देर पहले, क्या था रिवॉल्यूशन? एक सिस्टम को ओवरथ्रो करके दूसरा सिस्टम जब आता है उसको रिवॉल्यूशन। नाउ द पॉइंट इज, वाज खलजीज का आना was only a dynastic change? If it is only dynastic change without any kind of major change the political system in terms of structure and policies, it is not revolution. यहाँ पे क्या होगा? Why the reign of Khaljis is known as Khalji revolution? मैंने आंसर दे दिया आपको, उसका एक सिंगल लाइन का आंसर है, it is called Khalji revolution because it was not merely a dynastic change. The Khaljis brought a major change in the way the political system of Delhi Sultanate functioned. It indicates a break with the previous system. अब इसको 20 मार्कर 15 मार्कर कैसे लिखना है, इलैबोरेट करके, कौन सी प्रोसेस है, कौन से बदलाव है जो कि बहुत अलग है, जिससे पूरा सिस्टम बदल गया। समझ में आ रहा है आपको? तो वर्ड का मतलब भी पता होना काफी जरूरी है। If you don't know the exact meaning of revolution, you are not in a position to answer this question, even if you know what has happened under Khalji, right? How did English utilitarian thinking impact India in the British era? ये political ideology है by the way. Okay, so you just can rely on me. जितना आपको चाहिए उतना मैं political theory का पार्ट लेकर के आपको बताऊंगा कि क्या impact हुआ है। ये impact बड़ा है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म जो था उसके जो इन्फ्लुएंस हुए लोग थे, दे वांटेड टू चेंज इंडिया। मैं आपको एक सिंपल एक सेंटेंस में यहाँ पे बताऊं, जैसे कि मैं पिछले सवाल को बताया। बात ये है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो एक पॉलिसी बना था वो था कि इंडियन लोगों के सोशल इकोनॉमिक चीजों में, नहीं सॉरी, सोशल रिलीजियस चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो उनका इंटरनल डोमेन है। बट यूटिलिटेरियनिज्म चेंज दैट, ये लेकर क्या है, that we are supposed to change Indians because they are not modern, they are feudal in character. We must change them. We must interfere into their social and religious domain. ये बड़ा बदलाव था, वो हमको बताना है वहां पे, और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई। Discuss the changing nature of Dalit assertion in India in the 20th century. सवाल ठीक से देखो, क्या सवाल है? Dalit assertion in India in 20th century. वैसे it looks like post independence का जो था ना टॉपिक है ना, बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस की चीज ले ली डिस्कस करने के लिए, उसके रूट्स कहाँ होते हैं? प्री इंडिपेंडेंस में। सो वी आर, सवाल क्या पूछा, 20th सेंचुरी बोला है, ऐसे नहीं बोला कि लेट 20th सेंचुरी। अगर लेट 20th सेंचुरी बोला होता तो वुड हैव रिटन ओनली अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, पहले क्या अवेयरनेस बना, फिर आगे जाकर के असर्शन कैसे। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज असर्टिंग हिमसेल्फ? ऑब्वियसली, तो वो उनका तो मोस्टली जो काम है वो प्री इंडिपेंडेंस के दौरान है, राइट, एंड देन टू कैरी इट फॉरवर्ड द नेक्स्ट मूवमेंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस के मूवमेंट्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को देख करके, सिलेबस को देख करके, वो जो टॉपिक है सिलेबस का दलित मूवमेंट्स में मेंशन है,
पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या बोले, सिंस 1947 बोले, बट जो पहला टॉपिक होगा उसमें बैकग्राउंड, और वहां पे हम ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल 20th सेंचुरी में जो दलित असर्शन था वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्चुअल टॉपिक। तो इस तरह के सवाल यू कैन हैंडल। व्हाट इज एनलाइटेंड अबाउट एज ऑफ एनलाइटनमेंट, मैंने कहा ना आपको इसके ऊपर डिबेट है, आपको डिबेट लाना पड़ेगा, वो ब्रिंग द डिबेट, व्हाट इज एनलाइटेंड अबाउट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। सो देयर इज क्रिटिकल एस्पेक्ट एज वेल, वो भी आपको लेकर के आना है यहाँ पे। revolutions whether Russia or in China, communist, मैंने कहा ना revolution and counter revolution, communist revolutions are a disastrous way of transforming society. Comment, ये खुशी होती है, पता है क्या, the moment you understand something ना, उसको अप्लाई करने का जो मजा है, ठीक है। I tell you one thing, अभी मैंने आपको बताया कि रिवोल्यूशन क्या होता है, एक पूरा सिस्टम खत्म करके दूसरा लेकर के आ गया। More often than not, revolutions fail, including the glorious French Revolution. Most of the revolutions were failure. चलो, बहुत ग्लोरियस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दुनिया को 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज दे गया, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो रिवॉल्यूशन के बाद इस मूल्यों के आधार पे कुछ बना क्या वहां पे? नहीं। कौन सा लिबर्टी? एक राजा आके बैठ गया सर पे, नेपोलियन नाम का। कौन सा इक्वालिटी? वो राजा आप सब्जेक्ट हो। गेटिंग दिस? सो रिवॉल्यूशन मोर ऑफन देन नॉट फेल बाय, रीजन इज, अब ये मैं आपको बहुत जनरल बता रहा हूं, इसके फिर अलग स्पेसिफिक रीजंस हैं। रीजन ये है रिवॉल्यूशन फेल होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम revolutionaries, they romanticize about new system, they don't have concrete blueprint with them, right? Number one, even if they have concrete blueprint, they don't have roadmap as to how that new system will come step by step, right? Even if they have roadmap with them, right, in most cases they don't contemplate, they don't think about अगर नया सिस्टम आएगा तो उसकी मर्यादाएं क्या होगी, उसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। तो डू वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्यूशंस टू इट? इतना रिवॉल्यूशनरी ज्यादा सोचते नहीं मोस्ट केसेस, दैट्स व्हाई दे फेल। ये डिजास्टर कैसे थे, इनका मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूं, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन अपीयर्ड टू बी क्वाइट सक्सेसफुल, राइट? A very poor agricultural Russia suddenly became superpower, I'm telling you, right? But उसका डिक्लाइन भी उतना ही रैपिड हुआ इन द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, वो डिसइंटीग्रेट भी हो गया, तो कंप्लीटली फेल्ड। व्हाट अबाउट चाइना? आप बोलोगे चाइना तो है सर, वो तो पावर पे भी लग रहा है, उसका फेलियर कैसे है? चाइना विद दैट कम्युनिस्ट थिंकिंग इन माइंड, माओ त्से-तुंग, राइट, केम अप विद दैट रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन इट इज कॉल्ड, राइट? उसके बाद क्या हुआ? माओ सेड that he is inaugurating a policy called Great Leap Forward. Great Leap Forward. सब कुछ नहीं हुआ. There was no major development of China in the following decades. 1950s or 60s में China remained the same despite communist rule. Right? If you look at Russian Revolution, within a couple of decades they became superpower. So वो फेल हो गया माओ का रिवॉल्यूशन, एक तरह से देखा जाए तो। The China that you're seeing today, which is flexing its muscles, economic muscles, right? That is the result of Deng's reforms. Deng Xiaoping ने reforms किए थे, and Deng Xiaoping, अब ये इसको फिर अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि वो उसके रिफॉर्म फॉलो कर रहा था, उसका लॉन्च नाम का एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट था, राइट? बट दैट इज कॉल्ड स्टेट कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट कैपिटलिज्म या फिर ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिज्म। तो कम्युनिज्म कितना रहा उसमें? गेटिंग दिस? अब इसको पढ़ो। Whether Russia or in China, the revolutions are a disastrous way of transforming society. Comment, कितना समाज बदल पाया? कम्युनिज्म समतामूलक समाज का एक प्रॉमिस लेकर के आता है, राइट? China is home to one of the largest populations in the world which face the problem of unemployment. Getting this? तो ये रियलिटी है। तो समाज को कितना बदल पाएगा, इसलिए बोला गया कि डिजास्टर्स में। आपने जनरल भी लिखना है, स्पेसिफिक भी लिखना है, एंड देन कंक्लूजन देना, राइट? द इंपैक्ट ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द इमर्जेंस ऑफ यूएस एज सोल लोन सुपर पावर हैज बीन बोथ गुड एंड बैड डिस्कस। सो वन क्वेश्चन जहां पे आपको लग रहा है कि डेट पूछिए, फैक्ट पूछा, प्योर इंफॉर्मेशन पूछे, एनालिसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपका चॉइस है।
ये फिर से बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कम से कम 10 लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, बट आई वुड से वन थिंग है ना, उतने लूंगा नहीं मैं, डोंट वरी, क्योंकि हिस्ट्री है इसमें, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री दोनों है वैसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 क्या है, उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम बना सकते हैं किसी पोस्ट पीजी डिप्लोमा वगैरह इस तरह से, है ना, बड़ा टॉपिक है ना। यूएस जब सुपर पावर बना तो 1990s में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस हुए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें भी दो है, नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, राइट। वी आर एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंसेंसस ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, बिकॉज पहले जो भी यूएस बोलता था रशिया ना बोलता था, जो भी रशिया बोलता था यूएस ना बोलता था। अब जो है एक ही सुपर पावर है, वो जो बोलता है वो है कम से कम, एटलीस्ट वी आर एबल टू डू समथिंग। यूएनओ, which was almost like important organization, came out of Cold War and they could do something in post Cold War period. Those positives है, दूसरे negatives, US hegemony everywhere, US dominance, US interventions in different countries, उससे फिर कई सारा एक अनस्टेबल समाज बना, उससे फिर नए प्रॉब्लम्स सामने आए, वॉर प्रोन बनने लगा फिर से दुनिया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। ओके, सवाल समझ में आया क्या आपको? So having under syllabus and the type of question which are being asked, right? Let us come to this topic, sources for study. क्या क्या है बताओ मुझे। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, you are supposed to study NCERT के बुक्स, and I'm telling you, old NCERT, ancient, medieval, modern पढ़ लो, ठीक है, और ठीक से पढ़ो उसको, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट है, ओके, ऐसे वास्ट है ना, ऐसे वास्ट। तो पहले वो सिंपल पढ़ो, उससे फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। When you start reading ancient India, I know everybody is recommending उपिंदर सिंह। बुक पढ़ते समय कितने लोग, हमारे छोटे बच्चे हमारे, है ना, निराश हो जाते हैं, यार लाइक नहीं, अजीब सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पढ़ना। तो मेरा ये तरीका है, मैं आपको सीधा, है ना, खली के सामने खड़ा नहीं करता कुश्ती के लिए, पहले अपने आप में लड़ो, राइट। आई टेल यू वन थिंग, वो जो बुक है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इट इज लाइक टेक्स्ट बुक फॉर यू, राइट। बट डीएन झा का छोटा सा बुक है, हिस्टोरियन का बुक है, तो एंसर लाइक नहीं, उसमें काफी डिटेल्स भी है, वो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा और एक एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा आपको। सो दोज ऑफ यू हु आर एब्सोल्युटली न्यू बिगिनर्स फॉर दिस सब्जेक्ट, यू प्रेफर डीएन झा। और रही बात उपिंदर सिंह की, रोमिला थापर की, आर एस शर्मा, वो सब कुछ लेके आ रहा हूं मैं इसमें क्लास स्टडी मटेरियल, डोंट वरी। मैं तो यहां तक बोलूंगा, आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, गो फॉर दिस। योर प्राइमरी सोर्स विल बी दिस वाला, आप क्लास नोट्स पढ़ोगे, बट जैसे कि मैंने कहा कि नोबडी कैन क्लेम दैट इसमें से आएगा सब कुछ, इसलिए क्लास नोट्स के बाद टाइम मिला आपको तो आप ये सोचो कि एक आध बुक पढ़ लो, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें से एडिशंस कर सकते हो, राइट, क्लियर। मिडिवल इंडिया, सतीश चंद्र वॉल्यूम 1 and 2 पढ़ लो, काफी है। और अगर आपको सोशल कल्चर इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, सोशल कल्चर इकोनॉमिक, आप जेएल मेहता का, मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम 3 पढ़ो। जेएल मेहता ने क्या किया पता क्या, मिडिवल हिस्ट्री को 3 वॉल्यूम में लिया, एक वॉल्यूम दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, दूसरा वॉल्यूम मुगलों का टाइम पीरियड है, तीसरा वॉल्यूम इज डेडिकेटेड टू सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? सो सतीश चंद्र 1 and 2, जेएल मेहता 3, बहुत हो गया। मैं तो बोलूंगा कि आप सतीश चंद्र पढ़ लो बस, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है, ओके। मॉडर्न इंडिया, देयर आर 2 बुक्स, शेखर बंदोपाध्याय, इशिता बनर्जी दुबे। जनरल एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इज, तब वो इशिता बनर्जी दुबे डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, सो इफ यू आर ए बिगिनर, गो फॉर शेखर बंदोपाध्याय, उतना पढ़ लो, बाकी मैं देख लूंगा। गेटिंग दिस? ओके। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, नॉर्मल लव इज वन बुक, जैन माथुर है, एल मुखर्जी है, बर्न्स का है, बहुत सारे बुक्स हैं, आप कोई भी एक ले लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। 10 बुक पढ़कर क्या लेके आना, आई विल ब्रिंग इट, राइट। आपको मैं सारे बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बोलूँ, मैंने 2 तो वो भी मतलब देने के लिए कि कम से कम 2 बुक्स फॉर ईच सेक्शन, राइट। ये वो बुक्स है। फिर कंफ्यूज मत होना, सर वो उपिंदर सिंह का एक बुक दिखा मुझे, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया, हाँ है मेरे पास भी घर में, लेकिन बात ये है आपके लिए ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, तो मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ की फोटो निकालू शायद, ठीक है। तो ये वो बुक्स है, उसमें से कोई भी एक पढ़ लो, ऐसा होगा, ओके। कब से बोला जा रहा हूँ क्लास स्टडी मटेरियल, है ना, है क्या वो देखते हैं ना, ठीक है। जैसा सिलेबस वैसे लिखा है, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन,
एपिग्राफी, आगे न्यूमिज्मैटिक्स. यू फाइंड द टॉपिक इन सिलेबस, उसका हेडिंग आपको इधर मिलेगी. This is the format in which we are going to study. And are you able to see bold किए हुए points? अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा. तो पूरा पहले ठीक से पढ़ो, उसके बाद नोट्स निकालना भी काफी आसान है. जो आपको बोल्ड में से इंपॉर्टेंट लग रहा है, इतना मिल रहा है और क्या चाहिए. मैं वो भी बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है बोल्ड करके, राइट? मोर देन सफिशिएंट. तो क्लास स्टडी मटेरियल का एक हिस्सा ये है जो सबसे बड़ा हिस्सा है, बिगेस्ट पॉइंट, राइट? दूसरा जो करंट डायमेंशन है थोड़ा बहुत, तो सिंस लास्ट ईयर वी आर डूइंग दिस, है ना, एज द पार्ट ऑफ एकेडमिक एंडेवर, राइट? हर मंथ का जो करंट से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम में भी काम आएगा, राइट? तीसरा मॉडल आंसर्स, ये मैप पे मैंने दिया यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, हाँ? और दूसरा एक सवाल दिया यहाँ पे, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन वैदिक पीरियड. अगर ऐसा सवाल आया तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी और उसका एक कंक्लूजन. लेकिन यू मस्ट डू दिस. आर्य शर्मा क्या बोलते हैं, आर्य नंदी क्या बोलते हैं, आर यू गेटिंग दिस? अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, तो आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा. दिस आंसर इज बेस्ड ऑन द नोट्स. नोट्स बना के उसके बेस पे आंसर्स, या किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर सकते हो बेस्ड ऑन नोट्स, राइट? तो उतना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, राइट? सो दिस यू कैन सी. अगेन मार्शल मॉस इज ए हिस्टोरियन, राजन इज हिस्टोरियन. ये सारी चीजें आप, राजन इज पोजीशन है, राजन हिस्टोरियन में बाद में. ओके, सो ये इस तरह के आंसर लिखोगे, ये भी आपको मिलेगा. यू विल आल्सो गेट मॉडल आंसर्स, राइट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सेक्शन आई विल गिव यू फ्यू मॉडल आंसर्स, राइट? एंशिएंट इंडिया का जो सेट 1 मिलेगा आपको, उसके पीछे मॉडल आंसर्स 7-8 कुछ मॉडल आंसर्स रिलेटेड, क्या कंटेंट हमने पढ़ा, आंसर में कैसे लिखना है, राइट? ओके. सो सोर्सेस में हम ये पढ़ेंगे. नाउ द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर. सिंपल आपके सामने एक स्केच है, राइट? पहले रीड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, बट ये जो है एफर्ट रीड फ्रॉम ऑल, उसको मैंने मिनिमाइज किया. कैसे? ऑल सोर्सेस पढ़ के नोट बनाए. गेटिंग दिस? 3 aspects of comprehending the subject. How to establish control over the subject, history, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लोगों को लगता है कि हिस्ट्री इज ओनली अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है हिस्ट्री में, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट? है ना? सो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो. आई वुड टीच एवरी कॉन्सेप्ट, डोंट वरी. डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री. एग्जांपल दूंगे कॉन्सेप्ट का. वर्ल्ड इज ए कॉन्सेप्ट, वो आपको समझना पड़ेगा. उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्या इंडिकेट करता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया, उसमें बदलाव क्या है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट डेवलपमेंट सर, इट इज आल्सो अबाउट कॉन्सेप्ट. तो वही तो सवाल था ना कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो गुप्त और पोस्ट गुप्त काल में बदल गए, उससे फिर वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिव्यक्ति जो है अलग होने लगी. मतलब वो कॉन्सेप्ट बदला है कहीं ना कहीं. दैट कॉन्सेप्ट इज अंडरगॉन चेंज. सो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, वो जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे, उसमें इवोल्यूशन भी है. गुप्त पोस्ट गुप्त में क्या बदलाव हुए, उस इवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट दिख रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस तरह से, राइट? इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा, प्रोसेसिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. आप आदत डालो, जो डेटा है उसको आप अंडरलाइन करोगे, सोचोगे कि मैंने ये एग्जांपल देना है, ये एग्जांपल देना है. मैंने अगर बुकलेट में हमने क्लास स्टडी मटेरियल की बुकलेट में अगर 10 एग्जांपल दिए ना, आपको बस 1 या 2 लिखने हैं, तो आपको लगे अरे बहुत ज्यादा दिया है. नहीं, क्या होता है, आपके पास 10 एग्जांपल हो, आप 10 पढ़े हो तो कम से कम 2 याद रहते हैं, राइट? आपको सब कुछ रिप्रोड्यूस नहीं करना है. सो डोंट लुक एट द स्टडी मटेरियल की बहुत बड़ा, ऐसे नहीं. उसको ऐसे देखना कि इसमें से कुछ लिखना है. मुझे पढ़ता हूँ सब कुछ, लेकिन याद कुछ रहेगा, राइट? लुक एट दैट वे. डोंट लुक एट द हेवी काइंड ऑफ नोट, इट इज नॉट. ठीक है? सो फैक्ट्स, डेटा प्रोसेस करो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अंडरस्टैंड वेरियस पर्सपेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरियंस. अभी जो मैंने कहा कि आर्य शर्मा क्या बोले, आर्य नंदी क्या बोले, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पहले से पढ़ना शुरू कर दो, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसको लिखने की भी आदत डालो. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. मैंने कई सारे बच्चों को बोला, करते भी हम, जिनको नहीं मिला वो भी करते हैं बाय द वे, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं कि मैंने बोला इसलिए दुनिया करने लगी. आई डोंट कैरी एनी सच काइंड ऑफ ईगो. ठीक है? एक सिंपल चीज है, एक चैप्टर है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी क्या है, इवोल्यूशन, राइट? इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्लाइन. एक टॉपिक ओरिजिन. ओरिजिन के बारे में किस थिंकर ने क्या बोला है,
एक लाइन में, एक जॉन मार्शल क्या बोलते, एक लाइन में, तो आपके पास इतने ही जगह पे पेज के वो 4-5 थिंकर के नाम, मतलब ओरिजिन आए तो मैंने इनमें से लोगों के नाम लिखने हैं आंसर में, उसका एक अलग नोट बना। एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी कर रहा है पुणे यूनिवर्सिटी में, वो आया था मिलने के लिए, बोलता है सर पढ़े सब कुछ हो चुका है मेरा, बट वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग कभी नहीं हुआ। उसने मुझे दिखाया 30 पेज का उसने ये किया है मैं जो बता रहा हूँ। और फिर मैं क्लास में चला गया ऑप्शनल की, मैंने उनको बताया बच्चों को लास्ट ईयर की, अरे मैं आपको बोलता हूँ आप करते नहीं। वो कभी क्लास में बैठा नहीं मेरे, लेकिन वो उसने कर दिया 30 पेज में। कौन सा स्टूडेंट 2 वर्ड्स में क्या बोल रहा है, व्यू क्या है। अब 30 पेज का नोट आप रिवाइज करने में कितना समय लगता है, हाफ एन आवर एट द मोस्ट, 1 आवर। उतना टाइम होता है कि नहीं 2 पेपर के बीच में, उसमें तो आधा पढ़ना पेपर के लिए, आधा पेपर उनके लिए। स्टोरेज को रिमेम्बर करने का तरीका है, डू दैट इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ योर स्टडी, पहले पढ़ो। तो ऐसे कई सारे टिप्स हैं, हम उसकी बात करेंगे आंसर राइटिंग के बारे में। हाँ ओके, सो अलग अलग पर्सपेक्टिव एनालिसिस समझना है, उसके बाद उसका एक नोट बनाना है। देखो ओरिजिन, जॉन मार्शल, इंडिजिनस ओरिजिन, इतना लिखना है, उसको आपको एक्सप्लेन करने को आना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होगा तो आए। माइक्रो नोट तभी बनता है व्हेन योर अंडरस्टैंडिंग इज थॉरो। ओके, सो माइक्रो नोट्स बनाने आपने, जैसे कि मैंने अभी कहा, एक माइक्रो नोट बनेगा आपका, इसमें पूरा टॉपिक वेरी फ्यू वर्ड्स में आप लिखोगे, ओरिजिन के सारे व्यूज एंड दिस थिंग। एक जो बस इसके नाम आएंगे अलग अलग स्कॉलर्स, दैट्स इट। रिवीजन करते रहो उसका। आप ये मत समझना कि मैंने एक नोट बनाया अभी रिवीजन कर, ऐसे नहीं होता है। नोट मेकिंग खत्म करो, एक सेक्शन खत्म हो, सारे नोट्स पढ़ लो, फिर नोट्स मेकिंग सेक्शन खत्म हो, सारे नोट्स पढ़ लो, वो रिवीजन एक बार फॉर द सेक्शन। आगे जाकर के टेस्ट सीरीज लोगे आप, उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, तो कितनी बार रिवीजन होगा आपका, कम से कम 5-6 बार। फिर मेंस के दौरान फिर रिवाइज करोगे उसको, वहां पे कम से कम 5-6 बार। ये रिवीजन का शेड्यूल है। लोग क्या करते हैं पता है, कि आई वुड रीड नाउ, आई वुड रीड करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, जीएस, मैं करंट भी पढ़ूंगा, ऑप्शनल भी पढ़ूंगा, जीएस भी पढ़ूंगा, मैं एसआईडी भी पढ़ूंगा, रेफरेंस भी पढ़ूंगा, क्लास मटेरियल भी पढ़ूंगा, मैं नोट भी निकालूंगा, मैं रिवीजन भी करूँ। अरे कोई नहीं कर सकता ये, एक एक काम एक बार करो। फर्स्ट रीडिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड, सेकंड रीडिंग नोट मेकिंग, एक सेक्शन खत्म हो, रिवीजन, एक आध दूसरा आंसर राइटिंग, नेक्स्ट सेक्शन रिपीट, कंप्लीट द सिलेबस, गो फॉर द टेस्ट सीरीज में फिर रिवीजन, राइटिंग, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, रिवीजन। Getting this? So this is what you are supposed to do. Micro notes, revision, answer writing, feedback, back to the process for every section. Search for creativity and novelty. देखो ये कंपटीशन है, ठीक है, सोर्सेस सभी के पास सेम होता है, आपकी खूबियां बनाना। मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ये बोलूंगा, आई वुड इंप्रूव माय लैंग्वेज इन दिस मैनर, एवरीबॉडी हैज टू डू इट। ये आपको बाहर से कोई दे नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये आंसर ऐसे लिखा है, इसमें ये थोड़ा सा अलग है, तो ये सुन के आप में 60 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, हर कोई वही लिखेगा, कंपटीशन अल्टीमेटली। तो अपना खुद का भी डेवलप करो कि ठीक है मॉडल आंसर मिला, लेकिन मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग डिफरेंटली। ये पढ़ाई के बाद आता है, इमीडिएटली नहीं आता। नहीं आता तो विल डिस्कस ऑन दैट, राइट, उसका भी आप मत सोचो जाना। देन फोकस ऑन बिल्डिंग एनालिटिकल एबिलिटी। आप समझ गए होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एनालिटिकल इन नेचर। तो ये क्लासरूम डिस्कशन में आई एम टेलिंग यू, वी वुड डेवलप दिस, you just have to be attentive in the classroom, right? So this is what you need in terms of preparation. In this seminar, this is what I wanted to discuss, all these topics I wanted to cover, which is done on my side, right? So I end the session here, but you may ask questions.